Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. And today I'm going to talk about the functions of mineralocorticoid aldosterone. But before that, one ayah from Holy Quran and its translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये बताया जा रहा है, आदाब सिखाए जा रहे हैं कि दूसरों के घर में, ऐ ईमान वालों, अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाजत ना ले लो। ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू, जब तक इजाजत ना ले लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और वहां के रहने को वालों को सलाम न कर लो। इजाजत और सलाम के साथ दूसरों के घरों में दाखिल होना है, और यही तुम्हारे लिए सरासर बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। Now, functions of mineralocorticoid or aldosterone we are going to talk about. Aldosterone is the major mineralocorticoid secreted by the adrenal cortex from the zona glomerulosa. 90% of the mineralocorticoids zona glomerulosa से उसमें यही है, aldosterone की एक्टिविटी है. Cortisol has got also mineralocorticoid activity, but aldosterone is 3,000 times greater than the cortisol in this mineralocorticoid activity. But cortisol, level of cortisol is quite high as compared to aldosterone in our blood. So practically, cortisol also contributes a lot in the mineralocorticoid activity because of high level of the nearly 2,000 times than the aldosterone level. So the mineralocorticoid है तो ये पावरफुल भी यही है, लेकिन इसका लेवल कंपेयर टू कार्टिसोल बहुत कम है. काम तो यही करती है, लेकिन कार्टिसोल आल्सो कंट्रीब्यूट्स बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ इट. थोड़ी एक्टिविटी है लेकिन लेवल अच्छा खासा है. फंक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, हम दो तीन इंपॉर्टेंट बातें करेंगे. एल्डोस्टेरोन अफेक्ट्स this mineralocorticoid in the renal tubular system. Tubular absorption of sodium and secretion of potassium, ये बड़ा काम है. Secretion of other लेकिन प्राइमरी बात जो याद रखनी है आपने, absorption of sodium and exchange with the potassium, secretion of potassium as well as hydrogen. आगे हम बात करेंगे. Mainly the principal cells of the collecting tubules, किडनी में आपने पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे, to and lesser extent in the distal tubule, and the so collecting tubule और distal tubule में सोडियम की एब्जॉर्प्शन ये करती है. उससे पहले सोडियम की एब्जॉर्प्शन अलग बात है. ये एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिंग डक्ट्स में इट कॉजेज द एब्जॉर्प्शन. दूसरा काम इसको क्या याद रखना, सोडियम एंड पोटाशियम ट्रांसपोर्ट स्वेट ग्लैंड्स में भी इसका इंपॉर्टेंट है. स्वेटिंग हो रही है, लॉट ऑफ sodium is being secreted in the sweats and most of sodium is conserved. ये गर्मियों में जब ज्यादा स्वेटिंग होती है, lot of sodium is comes into the sweat, but aldosterone causes reabsorption of this sodium. And और salivary glands में भी there is secretion, salivary glands में भी there is absorption, और intestinal epithelial cells में भी aldosterone का रोल है. So बहुत सी जगहों पे aldosterone causes the absorption and reabsorption of the sodium. ट्यूबुलर हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन, ये पोटाशियम भी सिक्रीट करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है पोटाशियम सिक्रीशन. हाइड्रोजन आयन की भी सिक्रीशन है, इसको हम इलेबोरेट करें आगे. इन द एक्सचेंज टू द सोडियम इन द इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ द कार्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ द सोडियम के साथ एक्सचेंज होती है, हाइड्रोजन की भी एक्सचेंज होती है और पोटाशियम की भी एक्सचेंज होती है. दैट इज हाइड्रोजन इज sodium is absorbed and hydrogen or potassium is secreted in the urine. ये आगे हम देखेंगे. तो एल्डोस्टेरोन causes सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकती है, हम आगे देखेंगे. जरा सा हम देख लें. इफ एनीथिंग इंक्रीजेज द सोडियम, सॉरी ये सेंटेंस पसंद नहीं है, लिख दिया मैंने. दैट इज इफेक्ट ऑन सोडियम कंसंट्रेशन. इट इंक्रीजेज द टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम and corresponding amount of water is also added. So concentration पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. Initially concentration पे इफेक्ट होता है when sodium is being added into the body fluids, but later on water is also added to this and concentration remains the same. But when sodium is being added, water is being added, so there is increased extracellular fluid volume.
so that may lead to the increased arterial pressure. इसको हम आगे देखेंगे. High level of aldosterone may cause increased arterial pressure. So extracellular fluid volume can increase. It may cause edema as well. आगे देखेंगे. आमतौर पर edema करती नहीं है, लेकिन कर सकती. पोटाशियम का इफेक्ट हम देखेंगे. इट काजेस लॉस ऑफ पोटाशियम. अभी पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे थे, जिसको भी अहमियत इसकी याद रखनी है. इट काजेस, इफ एल्डोस्टेरोन नॉर्मल है तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ पोटाशियम इज बीइंग लॉस्ट. इफ एल्डोस्टेरोन इज मोर देन द पोटाशियम लॉस में इंक्रीज. हाइपोकैलेमिया में अकर विच इज डेंजरस, और दैट विल अफेक्ट द मसल्स. मसल पे भी इसका इफेक्ट होगा. हाइड्रोजन आयन का लेवल भी चेंज कर सकती है. एल्डोस्टेरोन इज मोर, अल्कलोसिस में अकर इट इज लेस देन दी एसिडोसिस में अकर. इसको हम आगे देखेंगे. सो दी इंपॉर्टेंट एरियाज जो हमने याद रखने हैं. नाउ वी कम टू द एक्चुअल फंक्शंस ऑफ. पहला काम तो प्राइमरी फंक्शन तो उसका यही है. दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज the sodium absorber. It causes the absorption of reabsorption of sodium from the kidney tubules, that is and the collecting ducts and distal tubule. ये पहले हमने target tissue देखा हुआ है. So it causes retention, conservation of sodium, primarily sodium. Sodium को conserve करती है. Only a few milligrams of sodium is lost in the normal urine. इसकी इंपॉर्टेंस देखने के लिए, नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन है 24 आवर्स में a few milligrams of sodium is lost in the urine. और अगर एल्डोस्टेरोन ना हो, as much as 20 grams or 30 grams of the sodium may be lost in the urine. And this is very important. If a lot of sodium is being lost in the urine, water retention, how water is retained in our extracellular fluid, it is the sodium and chloride which are maintaining the extracellular fluid volume. When lot of sodium is being lost, chloride will be lost. हम आगे देखेंगे. Chloride will be lost, water will be lost. Our body fluid, volume of the body fluid and volume of the blood will reduce, and it will fall, reduction in the blood pressure. This is so important. That is, complete absence of aldosterone is not compatible with life. Within days, death can occur without aldosterone. So secondary to the sodium absorption, water is also absorbed. ये तो आगे हम देखेंगे. कोई भी अगर पार्टिकल, कोई आयन एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई पार्टिकल एब्जॉर्ब है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो, आयन नहीं है, कोई पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहा है, corresponding amount of water is absorbed, osmotic reabsorption जिसको हम कहते हैं. When sodium is being absorbed, corresponding amount of water will follow it, and chloride is being absorbed, hydrogen and the bicarbonates are being absorbed, corresponding amount of water will. So secondary to the absorption of sodium, water is also reabsorbed. So this diagram is showing you excess of aldosterone increases the extracellular fluid volume. पिछले हम देख के आए हैं. Maybe arterial pressure, but only small effect on the plasma sodium ion concentration. ये पहले जिक्र किया था. Now you see aldosterone level ज्यादा करेंगे, mean arterial pressure may increase, थोड़ा सा increase कर सकता है, and extracellular fluid volume will increase. Normal extracellular fluid volume इतना increase करेगा, and urinary sodium loss will be reduced. aldosterone ज्यादा है, sodium loss will be reduced. So concentration of sodium यहाँ पे show नहीं हुई. Concentration of sodium remains normal. क्यों? If sodium is being absorbed, then corresponding amount of water is also being absorbed. Concentration ठीक होगी, total volume increase कर जाएगा. So effects of this, these are the second effects on chloride, bicarbonate and water. ये तो अभी ये, these are the secondary effects. What are those? Aldosterone causes absorption of sodium. Primary effect तो यही है. It causes absorption of sodium. But this absorption of sodium, you can imagine, एक तो osmosis से water तो absorb होगा, लेकिन बाकी चीजों को क्या होगा? Electronegativity in the tubular fluid. Sodium is being absorbed from into the extracellular fluid. So this positively charged ion is moving into the extracellular fluid. It is creating electronegativity here and electropositivity here. So this electronegativity and electropositivity here, it will cause the movement of the negatively charged particle into the extracellular. जहाँ पे positivity पैदा हो रही है, सोडियम जब उधर जा रही है, positivity पैदा कर रही है, तो these are negatively charged ions, they will also move. So they are absorbed.
सेकेंडरी टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम एब्जॉर्ब हो रही है, प्राइमरी काम उसका ये है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर पैदा हो रही है और उधर पॉजिटिविटी पैदा हो रही है, इट काजेज इजी एब्जॉर्प्शन, इजी मूवमेंट ऑफ दीज नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड एज वेल। तो ये दोनों जब जाएंगे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एंड मे बी अदर सम नेगेटिवली आयंस में काज, इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस विल इंक्रीज दी osmotically active particle, सोडियम तो ऑलरेडी गई हुई है, क्लोराइड विल गो, बाइकार्बोनेट कोई और आन गया, इट विल कॉज द ऑस्मोटिक इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द पेरिट्यूबुलर फ्लूइड, तो दिस विल कॉज द मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल। वाटर विल बी एब्जॉर्ब, वो तीसरा नंबर उस पे इसलिए लिखा हुआ है। तो एल्डोस्टेरोन causes primarily absorption of sodium, but secondary to its absorption of chloride, bicarbonate and water, and this all this will increase the extracellular fluid volume। हमने उसमें देखा था पिछली डायग्राम में, extracellular fluid volume is increased, blood volume may increase and it will may increase the blood pressure as well। so primary effect तो इसका ऊपर हर जगह पे लिखा हुआ यही है, एल्डोस्टेरोन एस्केप। एक मैकेनिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। what is that? Absorption of water and increase extracellular fluid volume बहुत excessive नहीं होती if aldosterone is too high। अगर बहुत ज्यादा हाई हो तो it doesn't cause the excessive NSR का या excessive edema और hypertension। ये क्यों नहीं करती? बिकॉज ऑफ दी ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ये तो हमने देखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, आर्टीरियल प्रेशर शुड इंक्रीज, किसी हद तक स्लाइट राइज इन द ब्लड प्रेशर विल अकर। लेकिन दिस स्लाइट राइज इन द ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दीज, इनकी वजह से दिस काजेज प्रेशर डायूरेसिस। कोई भी चीज जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे, इट काजेज प्रेशर डायूरेसिस। किडनी में डिटेल में पढ़ेंगे। आसान बात यह है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, फॉर्मेशन ऑफ GFR जिसको कहें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इट डिपेंड्स अपॉन द आर्टीरियल प्रेशर, वन ऑफ द फैक्टर। आर्टीरियल प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आर्टीरियल प्रेशर अगर ज्यादा का, देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द GFR एंड इट काजेज द मोर लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन। सो जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, ब्लड प्रेशर राइज करता है, एल्डोस्टेरोन तो वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहती है, सोडियम को एब्जॉर्ब करना चाहती है, बट दिस प्रेशर इंक्रीज करके इट इज काजिंग लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। तो दोनों अपोज कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द स्लाइट राइज इन द ब्लड प्रेशर, एल्डोस्टेरोन इज क्या कहते हैं, इज कंपीटिंग विद दिस urinary excretion, pressure diuresis is causing excretion, एल्डोस्टेरोन उसको एब्जॉर्ब करना चाहती है और दिस प्रेशर डायूरेसिस उसको एक्सक्रीट करना चाहता है। इसका रिजल्ट ये होता है, लॉट ऑफ सोडियम एंड लॉट ऑफ वाटर एंड लॉट ऑफ क्लोराइड, दे एस्केप द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन। उसका प्राइमरी इफेक्ट तो एब्जॉर्प्शन है उनका करना है, लेकिन वो फिर दे हैव टू बी लॉस्ट इन द यूरिन, दे एस्केप। इसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। और ये एक सेफ्टी है कि एक्सेसिव ब्लड प्रेशर राइज नहीं होता अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो, या एक्सेसिव एडिमा नहीं होता इफ एल्डोस्टेरोन इज मोर। सो सोडियम एंड वाटर एस्केप फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम है इसको एब्जॉर्ब करना है, लेकिन ये प्रेशर डायूरेसिस इसको एक्सक्रीट करवा देता है, तो उसे दे एस्केप। इसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। पोटाशियम पे इफेक्ट में इनका इंपॉर्टेंट है। क्या इफेक्ट है? सोडियम एब्जॉर्ब करती है, इट काजेज एक्सचेंज ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम को एक्सक्रीट करती है। तो पोटाशियम सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, दैट इज सोडियम इज एक्सचेंज विद द पोटाशियम। सोडियम एब्जॉर्ब होगी, पोटाशियम एक्सक्रीट हो जाएगी, इनटू दिस एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम विल अकर। सो इफ एल्डोस्टेरोन इज टू हाई, अगर किसी वजह से बहुत ज्यादा हो जाए, इट विल काज हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया से मसल बिकम वीक। मसल क्यों वीक होते हैं? यू नो पोटाशियम इज प्राइमरीली इंट्रासेल्युलर आयन। सो दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हमने वो जो शुरू के चैप्टर्स में आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डिटर्मिनेशन देखी थी कि आयनिक बैलेंस कैसा है, पोटाशियम का क्या रोल है, सोडियम का क्या रोल है। इफ पोटाशियम इज लेस then the cell membrane, muscle cell membrane may be hyperpolarized, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज निकल गया है, कम हो गया है, तो इंटीरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में बी मोर नेगेटिव, हाइपरपोलराइज। तो हाइपरपोलराइज को डीपोलराइज करना मुश्किल हो जाएगा, तो मसल्स आर वीक।
नॉर्मल इम्पल्स उसको स्टिमुलेट ना कर सके, प्रॉपर डिपोलराइज ना कर सके. सो high level of aldosterone causes hypokalemia which may cause muscle weakness or muscle paralysis अगर बहुत ज्यादा हो जाए. और अपोजिट भी आप इसको अप्लाई कर लें. If the aldosterone is too low, so this mechanism of excretion of potassium is not there. So potassium will be collected in the body fluid, that is known as hyperkalemia. पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा एंड हाइपरकैलेमिया इज कार्डियोटॉक्सिक. इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत क्लिनिकल क्लासेस में पढ़ेंगे. कार्डियोटॉक्सिसिटी, पोटाशियम को एग्जाम बर्दाश्त नहीं करता. 4.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट आपका पोटाशियम का लेवल है, ये 5, 6, 7 हो जाए तो दिस इज डेंजरस फॉर हार्ट. हाइपरकैलेमिया इज, सो वीकनेस ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन अकर्स इफ देयर इज हाइपरकैलेमिया. Arrhythmia may occur, rhythm may be lost. So it is hyperkalemia is cardiotoxic. इतना काफी है. हार्ट फेलियर में occur, वीकनेस होने की वजह से यार. इफेक्ट ऑन पोटाशियम एंड मसल, ये बात कर दी अभी हमने. दैट इज एक्सेस एल्डोस्टेरोन causes hypokalemia, muscle weak, and too little aldosterone causes hyperkalemia and cardiotoxicity. ये उसी की वही स्लाइड दोबारा रिपीट होगी. हाइड्रोजन आयन के साथ भी वही मामला है पोटाशियम वाला. it is hydrogen ions are also exchanged with the sodium ions. That is, aldosterone causes reabsorption of sodium, और sodium are exchanged with the hydrogen ion. ब्रैकेट में पोटाशियम लिखा हुआ, पिछली स्लाइड में पोटाशियम थी, हाइड्रोजन या पोटाशियम के साथ एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज होता है. So increase excretion and then secretion and excretion of these hydrogen ions. This is very important mechanism to get rid of acidity. Hydrogen ions are acid. एसिडिटी को बॉडी, हमारा मेटाबॉलिज्म में एसिडिटी पैदा हो रही है, एंड दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म टू गेट रिड ऑफ दिस एसिडिटी इन द यूरिन, दिस हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन. इफ एल्डोस्टेरोन इज डेफिशिएंट, then this hydrogen ion secretion will not be there and it will cause alkalosis. No, sorry, it will cause accumulation of hydrogen ion, it will cause acidosis. Now increase aldosterone, excessive loss will occur, that will alkalosis. और opposite, अगर decrease aldosterone हो, this retention of sodium will occur, this exchange will not take place and it causes acidosis. इसको यहाँ पे जब डायबिटीज हम डिस्कस करेंगे ना, जो शायद आपको आइडिया हो, डायबिटिक एसिडोसिस जिसको कहते हैं, वो भी इसी मैकेनिज्म की वजह से है. डायबिटीज में कीटोन बॉडीज पैदा होते हैं, व्हेन दे आर लॉस्ट इन द यूरिन दे कॉज द लॉस ऑफ सोडियम. सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हो तो दिस सिस्टम इज गॉन. एल्डोस्टेरोन का ये वाला सिस्टम एंड देयर इज डायबिटिक एसिडोसिस, वहां पे भी फिर इसका जिक्र करेंगे. सो एल्डोस्टेरोन कॉजेस एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. अगर ये एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगी, मोर एक्सक्रीशन हो जाएगी, एल्कोलोसिस हो जाएगी, कम होगी तो एसिडोसिस हो जाएगी. इफेक्ट्स ऑन अदर एरियाज. ये अदर एरियाज का क्या मतलब? That is, ये बात हम शुरू में कर चुके हैं. Same, almost the same effects are there in the ducts of the sweat gland, salivary gland, and intestinal epithelium. Absorption of sodium chloride, bicarbonate, water, etc. ये उसी का almost the same effects, and that reabsorption of sodium chloride and bicarbonate, excretion of potassium and hydrogen ion उसी किस्म का काम करती है. This is important. Sweat gland में especially it is important. Conservation of salt in hot weather. Hot weather में profuse sweating हो रही होती है. अगर aldosterone ना हो, lot of sodium may be lost in the urine, तो सोडियम की कमी हो सकती है. तो this is important. Conservation of salt in hot weather and profuse sweating. Conservation of salt when excessive salivation occurs. कभी कभी salivation ज्यादा हो तो उसमें भी excessive loss of sodium and chloride may take place, उसको भी एल्डोस्टेरोन रोकती है. Important colonic absorption of the electrolytes. हमारे आपको पता है our electrolytes are mostly absorbed in the large intestine, colon में. colon से हम कहते हैं ना, we eat through small intestine हमारे, and we drink through large intestine. large intestine में water and electrolytes absorb होते हैं, वहां पे भी एल्डोस्टेरोन का ऐसा ही रोल. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बस एक दो स्लाइड है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, इसको खत्म करते हैं. स्टीरॉयड हार्मोन है ना, स्टीरॉयड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जेनेटिक होता है. दैट इज स्टीरॉयड हार्मोन एक्ट थ्रू द जेनेटिक मैकेनिज्म. इट इज लिपिड सॉल्युबल. जल्दी जल्दी गुजर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ मैकेनिज्म स्टीरॉयड हार्मोन का. लिपिड सॉल्युबल एल्डोस्टेरोन एंटर्स इनटू द ट्यूबुलर सेल. एचआर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म, देन इट मूव्स इनटू द न्यूक्लियस. ये डिटेल हमने पढ़ा हुआ है. एंड न्यूक्लियस में जाके इट कॉजेज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स,
और स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए इज फाउंड, वो मैसेंजर आरएनए कम्स बैक इनटू द साइटोप्लाज्म। ये डिटेल हमने पढ़ी हुई है, उसको सिर्फ दोहरा रहे हैं। जैसे एक्शन ऑन द राइबोसोम, देयर विल बी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मींस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द मैनी फॉर्म्स ऑफ द प्रोटीन। वो प्रोटीन ये सारा काम कर रहे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। So those are the enzymes and those are the membrane transport protein for the absorption of sodium etc. ये जो काम हो रहे हैं through these proteins हो रहा है, that is the mechanism of action। ये enzymes, potassium ATPase for the pumping of sodium potassium at the basolateral membrane, वो enzyme इसी पंप को तेज करने वाली एंजाइम पैदा होंगी, पोटेशियम सोडा एटीपीएस। एंड द चैनल प्रोटीन जो इसको क्रॉस करने के लिए इंसर्टेड इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन फॉर एंट्री ऑफ सोडियम, सोडियम को एब्जॉर्ब करना है ना, वो ये एक्टिविटी इस पंप की भी तेज करें सोडियम के लिए। और देयर इज दी उसमें चैनल भी बना रहे हैं, दो प्रोटीन आर इंसर्टेड। तो लॉन्ग लेटेंट पीरियड ऑफ एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये भी हमने पता है। ऑल द स्टेरॉयड हार्मोन हैव गॉट लॉन्ग लेटेंट पीरियड, क्यों? दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, दे आर रिलीज स्लोली, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक लंबा काम है। पहले वो उधर जाएंगे, जेनेटिक मैकेनिज्म होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, वापस आएगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, फिर वो जाके काम करेंगे। सो इट हैज गॉट लॉन्ग लेटेंट पीरियड। जब इसका एक्शन हमने देखेंगे इसको देने के बाद, तो इफेक्ट स्टार्ट्स आफ्टर 45 मिनट्स इसके रिलीज के बाद इसके, एंड दी रीचेज मैक्सिमम आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटे के बाद। तो अच्छा, एक और स्लाइड एक और आ गई है, दैट इज दी, ये तो इसका एक डायरेक्ट एक्शन भी है, एक स्ट्रेंज एक्शन, ये न्यूली इन्वेस्टिगेटेड एक्शन है, नॉन जीनोमिक एक्शन, यानी जेनेटिक के थ्रू। ये दूसरे मैकेनिज्म थे, जेनेटिक मैकेनिज्म असली बात तो यही है, लॉन्ग लेटेंट पीरियड, लेकिन रैपिड मैकेनिज्म इसका भी है, दैट इफेक्ट्स दी हैव बीन डिटेक्टेड रिसेंटली। वो क्या है, सम रिसेप्टर इन दी सेल मेम्ब्रेन इसके बाएंगे, उसके साथ जब मिलेगा एचआर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन दी सेल मेम्ब्रेन और साइक्लिक एएमपी बन जाता है, वो तेजी से काम करता है। मतलब साइक्लिक एएमपी बनते ही कुछ एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम, वास्कुलर मसल्स, स्पेशली इन द 2 मिनट, इट मे कॉज द वास्कुलर मसल में हैज बीन डिटेक्टेड इन 2 मिनट्स, ये साइक्लिक एएमपी। एंड अनदर सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी है, एंड फास्फेटाइल आइनोसिटोल, एक और नाम याद रख सकते हैं तो ओके। तो ये दिस हैज बीन डिटेक्टेड, तो ये एक नॉन जीनोमिक एक्शन भी है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं पता, बट इट हैज बीन सीन कि इसका नॉन जीनोमिक एक्शन भी है। स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पेशल रिसेप्टर इज नॉट नोन, अभी इसके बारे में डिटेल नहीं पता कि नॉन जीनोमिक एक्शन भी हमने ये मालूम हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इज नॉट क्लियर, तो इंपॉर्टेंस वही है जो हमने डिस्कस कर ली। तो एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ इसी एल्डोस्टेरोन के, हाउ दिस लेवल इज रेगुलेटेड, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसको सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों को शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।